solar system. So before starting the chapter, I want to give you some instruction. So please listen carefully. First of all, join the class with your actual or your official name and switch off your videos. And if you have any queries, any questions, please write the questions on a paper, and at the end of the class, you can ask. Okay? So students, our topic is our planet Earth and the solar system. So in this chapter, we will discuss about our Earth and all the shiny and tiny objects you can see in the night and day sky. Student, please join the class with your name, with your actual name. Hello students. So now I'm going to start the chapter. First of all, I want to give you some introduction about the chapter. In this chapter, we will talk about our planet Earth and all the objects that you see in the night or day sky, like the sun, the moon, the stars, and all the planets. So please listen carefully and kindly open your books. So students, whenever you see in the night sky, you can see the shiny tiny objects. जब भी आप रात में या दिन में स्काई में देखते हो, तो रात में तो आप देखते हो कि कुछ छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट शाइनिंग आपको दिखाई देते हैं, और दिन में आपको एक ब्राइट शाइन करता हुआ सन दिखाई देता है. So students, how wonderful it is to watch the sky after sunset. तो देखिए, सनसेट के बाद में स्काई को देखना कितना वंडरफुल होता है. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. As well as night come, as well as the sun set in the sky, you can see some one or two shiny objects shining in the sky. आप देखते हो कि कुछ एक दो शाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्काई में शाइन करते हैं. Soon you would see the number increasing. धीरे धीरे आप देखते हो कि ये जो आप शाइनी ऑब्जेक्ट देखते हो, इनका नंबर इंक्रीज होता जाता है. You cannot count them anymore, and you cannot count the number of that shiny object. They are countless. आप कभी भी इन शाइनी ऑब्जेक्ट्स को कभी भी काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मिलियंस नंबर में मिलियंस या ट्रिलियंस भी हो सकते हैं. तो आप you are not able to count them. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. आप देखते हो कि धीरे धीरे पूरा स्काई शाइनी ऑब्जेक्ट से फिल हो जाता है. उनमें से some are bright, कुछ तो बहुत चमकते हैं, others dim, और कुछ dim होते हैं. It seems as if the sky is stirred with diamonds. ऐसा लगता है जैसे पूरे स्काई में किसी ने डायमंड जड़ दिए हो. Stirred, there is a term stirred, S-T-U-D-D-E-D. It means जड़ देना या फिक्स कर देना. आप देखते हो ना अपने घर में किसी दुपट्टे में या डायमंड्स जड़े होते हैं, तो at the night sky, the sky is just like the someone stirred the diamonds in the sky. कि किसी ने पूरे स्काई में डायमंड जड़ दिए हो. They all appear to be twinkling. ये सभी आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. ट्विंकल मतलब ब्लिंकिंग मीन्स झिलमिलाहट.
आप जब भी नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि कुछ जो शाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में रात को, उनमें से कुछ ट्विंकल करते हैं। एक बार उनकी लाइट है वो कम होती है, एक बार ज्यादा होती है, ऐसे वो ब्लिंक करते हैं। बट if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन आप देखोगे कि आप उनको केयरफुली अगर नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि उनमें से कुछ तो ट्विंकल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। शायद आपने ये नोटिस नहीं किया होगा। आज ही जब आपको क्लियर स्काई दिखाई देगा रात में, नाइट स्काई में, आप जब भी स्काई की तरफ देखोगे आप देखोगे कि उनमें से कुछ जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन अदर्स are not twinkling. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. वो बस एक शाइन करते हैं जैसे कि हमारा मून शाइन करता है, और उनमें कोई भी फ्लिकर्ड मतलब झिलमिलाहट या ट्विंकलिंग नहीं होती। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा बेटा, पर आप आज ही नोटिस कीजिएगा कि जितने भी स्टार्स आप रात को स्काई में देखते हैं उनमें से कुछ तो ट्विंकल करते हैं, बट अदर्स डू नॉट। सो along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. देखिए, along with all these shiny tiny objects, along with moon, you may also find there is a moon that's shining very brightly in the sky. However, it may however appear at different times in different shapes and different position. लेकिन आप देखोगे कि ये जो मून है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट, इसकी शेप भी डिफरेंट होती है और इसका साइज भी डिफरेंट होता है, इसकी जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट होती है। आप नोटिस कीजिएगा कि जो मून है उसकी शेप सभी रातों में एक जैसी नहीं होती है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो प्लीज नोटिस कीजिएगा कि जो मून की शेप है वो सभी दिन एक जैसी नहीं होती है। इट ऑलवेज चेंजेस इट्स शेप एंड साइज एंड इट्स पोजीशन टू। You can see the full moon only once in about a month's time. Full moon को सिर्फ आप एक मंथ में एक बार देख सकते हैं। You are able to see the full moon in the sky at only once at a month. ठीक है? It is full moon night और पूर्णिमा। ये full moon की नाइट होती है जिसको पूर्णिमा कहते हैं। देखिए बेटा, आपके घर में आपने अपने एल्डर्स को या अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि टुडे इज पूर्णिमा और टुडे इज अमावस्या। डेफिनेटली यू हियर्ड अबाउट इट। तो देखिए बेटा, जिस दिन भी पूर्णिमा होती है उस दिन हमको पूरा फुल मून दिखाई देता है। वी आर एबल टू सी द फुल मून इन द स्काई। सो पूर्णिमा के दिन अपन पूरा फुल मून देख सकते हैं। शायद 2-3 दिन बाद ही पूर्णिमा है, तो आप लोग जरूर नोटिस कीजिएगा, उस दिन आपको स्काई में पूरा मून दिखेगा। A fortnight later, fortnight means after 15 days. A fortnight later, you cannot see it at all. 15 days के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा ये। You are not able to see it at all. It is a new moon light और अमावस्या। तो ये कौन सी नाइट होगी? न्यू मून की। इसके जो नेक्स्ट डे आपको मून दिखाई देगा वो एक बिल्कुल पतली सी लेयर लाइक ए थ्रेड आपको दिखाई देगा। और ये कौन सी नाइट होगी? अमावस्या। तो आपके घर में जो भी एल्डर्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, तो यू कैन आस्क टू देम दैट प्लीज
let you notice that when will Amavasya and the Purnima comes. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. At the night of the Amavasya, you can see the clear sky and all the shiny and tiny objects are shining very brightly in the sky. तो जब अमावस्या की नाइट आएगी, आप सभी ऑब्जेक्ट्स को लाइक मून, द स्टार्स, आपको सभी बहुत क्लियरली दिखाई देंगे. तो जब भी अमावस्या की बात होगी तो आप अपने एल्डर से जरूर पहले से आप ध्यान में रखिएगा कि आज अमावस्या है, तो उस रात को आपको बिल्कुल क्लियर स्काई, अगर वेदर क्लियर है तो आपको पूरा क्लियर स्काई दिखाई देगा. तो आप प्लीज जरूर नोटिस कीजिएगा. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आपके जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स को स्काई में देखते हैं लाइक द सन, द मून, द स्टार्स, क्या आपको लगता है कि एट द डे टाइम दे ऑल विल डिसअपियर, कि ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं? नो, they are still there in the day sky, but the bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. Student, please join the class with your actual or your official name, please. तो देखिए बेटा, ये जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स आप रात के स्काई में देखते हो, नाइट स्काई में, ये दिन में भी स्काई में होते हैं, लेकिन जो सूरज की जो ब्राइट रोशनी होती है वो हमें अलाउ नहीं करती है उनको देखने में, क्योंकि जो सन की ब्राइट शाइनिंग होती है उसमें वो सब उसके पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि जो आपके सन की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है. तो it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. I hope you all are understanding it very well. Now, the sun, the moon, the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Please underline these two lines because these two lines are very, very important. Celestial bodies. What are celestial bodies? After the class, I will ask you the questions. So please listen carefully, students. The sun, the moon, and all the objects shining in the night sky are called celestial bodies. देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप डे या नाइट स्काई में देखते हैं, they all are called celestial bodies. What is the meaning of celestial? Celestial means heavenly, related to heaven or sky. Means देखिए बेटा, पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था, जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था, उस वक्त क्या था, जब भी लोग आसमान की तरफ देखते थे रात में या दिन में, तो उनको जो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देते थे लाइक द सन, द मून, द स्टार्स, तो वो लोग बहुत ही फैसिनेटेड हो जाते थे और वो लोग सोचते थे कि इन सबको बनाने वाला कौन है? गॉड. तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर गॉड अगर कहीं है तो वो इन सब स्टार्स या मून के बीच में ही है, इसीलिए, और गॉड है वो यही हेवन है, ये जो स्टार्स है, मून है, इनके बीच में ही हेवन है कहीं, और गॉड वही है. तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हेवनली बॉडीज कहा जाने लगा. हेवनली मीन्स रिलेटेड टू हेवन, और सेलेस्टियल बॉडीज आल्सो मीन्स हेवनली बॉडीज. सो बेटा, रिमेंबर दिस दैट द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट shining in the night sky are called celestial bodies. Are you getting me? Some celestial bodies are very big and hot. Listen, कुछ जो celestial bodies होती हैं, heavenly bodies होती हैं, they are very big and hot. बहुत बड़ी होती है. Our earth is also very big.
So some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. Some celestial bodies are made of some gases. So they have their own heat and light. These celestial bodies, which are very big and hot and made up of gases, are having their own heat and light. जो celestial bodies बहुत बड़ी और hot होती है, जो gases से बनी होती है, उन सबके पास अपनी heat और light होती है, which they emit in large amount. जिसको वो ये celestial bodies जो होती है, वो अपनी gases और अपनी heat को large amount में emit करती है. Emit means, what is the meaning of emit? Emit means release करना या throw करना. तो ये जो celestial bodies होती है, ये अपनी heat gases को large amount में emit करती है, जिससे कि इनके आसपास जो celestial bodies होती है, उनको energy मिलती है. वो move करते हैं इनकी gases. ये जो gases और heat release करती है, उनसे अदर सेलेस्टियल बॉडीज को क्या मिलती है? हीट मिलती है. These celestial bodies are called stars. ये जो बिग और हॉट सेलेस्टियल बॉडीज होती है, इनको क्या कहते हैं? स्टार्स. जो भी स्टार्स आप नाइट स्काई में देखते हो, all the stars you can see in the night sky are very big and hot. They also are made up of gases and they emit their gases and heat in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Wondered, no? The sun is a star. Our sun that is shining so brightly in the day sky is also a star, just like the other star you can see in the night sky. हमारा जो ये बड़ा सा चमकता हुआ सूरज है, ये भी जो अपन रात के स्काई में जो टाइनी टाइनी स्टार्स देखते हैं, उनके सिमिलर ही एक स्टार है. आपको बहुत वंडर हुआ होगा सुन के कि वो तो इतने छोटे छोटे दिखते हैं और सन तो इतना बड़ा होता है. तो देखिए, इसको अपन अभी क्लियर कर लेते हैं. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. तो देखिए, जितने भी countless twinkling star you can see in the night sky is also similar to the sun. आप जितने भी countless twinkling star night sky में देखते हैं, वो सूरज के समान ही है. उनकी shapes, size, heat, gases वो similar है सन पे. But we do not feel their heat or light. लेकिन हमें उनकी heat और light feel नहीं होती है. The heat and light of the stars are not feel to us. Okay? हम लोग feel नहीं कर पाते हैं उनकी heat and light को. And they look so tiny because they are very, very, very far from us. देखिए, जितने भी स्टार्स हमको नाइट स्काई में टाइनी स्टार्स दिखाई देते हैं ट्विंकलिंग करते हुए, उनकी हीट और लाइट हमको इसीलिए फील नहीं होती, और वो हमको इतने टाइनी इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. वो हमसे बहुत दूर है, बहुत मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर. आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस, बट दे आर मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर far from us. That's why they are looking so tiny to us. I hope you are getting me very well. So next is, okay, you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. So beta, you all know that whenever we look any objects from a distance, they appear smaller. हम अगर distance से किसी भी object को देखते हैं तो वो हमें small दिखाई देते हैं. Comparison to that, अगर हम पास से उनको देखें तो वो उनका हमें actual size दिखाई देगा. लेकिन when we go
far from that object, they appear very small. Okay, if you can see, if whenever you see an aeroplane from at your home, it appears very tiny. आपने देखा होगा जब भी आप एरोप्लेन को देखते हो अपने घर से तो ये आपको टाइनी दिखाई देता है, लेकिन क्या आपने कभी रनवे पे या एयरपोर्ट पे आपने एरोप्लेन को देखा होगा तो ये आपको इसका एक्चुअल साइज दिखाई देगा. इट इज वेरी बिग. ठीक है ना. तो whenever you see any object from the distance, it appears smaller comparison to that you looked it from a nearest. Okay, while watching the night sky, you may notice various pattern formed by different groups of stars. जब भी आप नाइट स्काई में देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि कुछ स्टार्स एक फिक्स पैटर्न में रहते हैं. There are some group of stars and there are also some stars. They are always found in a fixed pattern. आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब भी आप अपने एल्डर्स से या अपने घर में जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे बात करोगे तो you will find that there are some stars, some group of stars. They are there in a fixed pattern always in the night sky. तो देखिए कुछ स्टार एक फिक्स पैटर्न में होते हैं. These are called constellation. The new meaning is come for you constellation. Constellation means group of stars, and you can also say it Tara Mandal. Tara means star and Mandal means group of stars. तो देखिए these group of stars which found in a fixed pattern in the night sky are called constellation. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. कुछ ऐसे ही जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, कॉन्स्टलेशन है, उनका नाम है उर्सा मेजर एंड बिग बियर. ये नाम है कुछ डेफिनेट जो पैटर्न होते हैं स्टार्स के उनके. तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि इन सभी के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे. One of the most easily recognizable constellation is the small bear और सप्तऋषि. सप्त मीन 7 और ऋषि मतलब सीजन्स मतलब 7. देखिए एक बहुत ही इजीली जो पहचान में आने वाला, इजीली रिकॉग्नाइज करने वाला कॉन्स्टलेशन है वो है सप्तऋषि और उर्सा मेजर. तो देखिए बेटा ये जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि ये जो कॉन्स्टलेशन है वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप है. और जब भी आप अपने एल्डर्स से या अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जो एंशिएंट टाइम में जो लोग थे इन्हीं जो आपके जो फिक्स पैटर्न्स होते हैं कुछ स्टार्स के, उससे ही टाइमिंग का पता लगाते हैं. ठीक है ना. व्हाट इज द टाइम एट नाउ. सो इन जो ये कॉन्स्टलेशन है इनसे टाइम और डायरेक्शन का भी पता भी इन कॉन्स्टलेशन से ही लगाते थे. So Saptarishi is a group of 7 stars. You can also see in the figure 1.1 that there are a group of 7 stars. Look, there are 7 stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the group of 7 stars, and you always find these 7 stars in this pattern in the night sky. ठीक है. आप हमेशा ही इन 7 stars के ग्रुप को हमेशा नाइट स्काई में आपको ये इसी पैटर्न में मिलेगा. तो देखिए that forms a part of Ursa Major constellation. और ये जो सप्तऋषि constellation है ये Ursa Major constellation का ही एक पार्ट है. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars. अपनी फैमिली में अपने एल्डर्स को या अपने नेबरहुड में किसी को बोलिए जो भी आपके एल्डर्स है जो कि स्टार्स के पैटर्न्स के बारे में नॉलेज रखते हैं
उनसे कहिए कि आपको और ज्यादा जो स्टार्स के ग्रुप है उनके बारे में नॉलेज मिलेगा। प्लैनेट एंड neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky। तो आपने एल्डर्स को बोलिए कि आपको स्काई में जो और स्टार्स है, प्लेनेट है, कॉन्स्टलेशन है, उनके बारे में आपको बताएं। क्लियर? So let's move further. In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. So as I told you earlier, that in ancient time, the people use these stars to know the directions during the night with the help of stars। तो ये जो stars है या ये जो constellation है, इनकी हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे। आज तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम में जब ऐसे कोई मशीनरी या ऐसे कोई इक्विपमेंट डेवलप नहीं हुए थे, तब लोग इन्हीं स्टार्स या कॉन्स्टलेशंस की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखिए जो नॉर्थ स्टार है, आपको हमेशा नॉर्थ जो डायरेक्शन है, आज ही आप देखिएगा चाहे, ये हमेशा ही आपको इसकी एक फिक्स पोजीशन नॉर्थ नाइट स्काई में नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। हम नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कह सकते हैं। It always remains in the same position in the sky. What is the position of the pole star? As I told you earlier, it always remains in the same position in the sky. ये हमेशा ही आपको नाइट स्काई में नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखेगा। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। हम पोल स्टार, अगर आपको नहीं पता कि हम पोल स्टार की डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे, तो आप इसकी डायरेक्शन को सप्तऋषि की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extend further, it will point to the pole star. तो देखिए, अब इस फिगर पे आइए, वेट फॉर ए व्हाइल। देखिए, this is the group of 7 star, this is Saptarishi constellation, and whenever you see these are the 2 stars, these are the stars of that group, Saptarishi constellation, and whenever you draw a imaginary lines from these 2 stars to here, you can see the pole star here. This is the pole star or north star, and this always remains in the night sky in fixed direction in the north direction। इसकी जो डायरेक्शन है उसका पता लगाना बहुत ही ईजी है। आप सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन के ये जो नीचे के 2 स्टार है, उनसे अगर एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, तो आपको ये पोल स्टार का जो इसकी जो पोजीशन है आपको पता लगेगी। तो आप ये आज करके देख सकते हो। Hope you are you getting me very well? So that's all for today. We will discuss more about this chapter in our next class. Till then, stay home, stay safe.